Welcome to SGKG Studies YouTube channel classes, and on this channel now we are going to discuss about Transaction of Business Rules 1961. Before this we have already discussed about Allocation of Business Rules 1961. So in allocation we have seen majority of the Government of India jobs has been allocated to ministries, their departments, and like that statutory bodies, autonomous bodies and PSUs. So now we will concentrate only upon the Transaction of Business Rules 1961, and this order is also dated 14th January 1961. Allocation of Business Rules is also dated 14th January 1961, and Transaction of Business Rules is also dated 14th January 1961, and it has been signed by the then President of India, that is first President of India, Dr. Rajendra Prasad. So in short it will be known as the Government of India Transaction of Business Rules 1961. This rule has been created taking the power from clause 3 of article 77 of Constitution of India, right? These rules, department means any of the ministries, departments, secretariat and offices specified in first schedule of the Government of India Allocation of Business Rule 1961. So wherever the terminology department is used in this order, in this rule book, it means the ministry, department, secretariat and offices specified in the first schedule of the Allocation of Business Rule 1961. So that means it is referring to Allocation of Business Rules 1961. Disposal of business by ministries. Subject to the provisions of these rules in regard to consultation with other departments and submission of cases to the Prime Minister, the Cabinet and its committees and the President, all business allotted to a department under the Government of India shall be disposed of by or under the general or special direction of Minister in charge. So जो कुछ भी ड्यूटीज, जो कुछ भी बिजनेस मिनिस्ट्रीज को दिए गए हैं वो सारे के सारे ड्यूटी डिस्चार्ज किए जाएंगे, सारे के सारे बिजनेस परफॉर्म किए जाएंगे अंडर द जनरल और स्पेशल डायरेक्शन ऑफ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ दैट मिनिस्ट्री. इसको थोड़ा सा बड़ा मैंने कर दिया है, पीछे वाले में कम समझ में दिखाई पड़ रहा था, ये सेम चीज़ें हमने दे दिया है. इसके बाद से इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन. When the subject of a case concerns more than one department, no decision be taken or order issued until all such departments have concurred, or failing the such concurrence, a decision thereon has been taken by or under the authority of the cabinet. So कभी कभी ऐसा होता है कि एक सब्जेक्ट मैटर होता है, एक सब्जेक्ट मैटर में बहुत से मिनिस्ट्रीज, बहुत से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन टेकिंग के लिए. तो जितने डिपार्टमेंट, जितने मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हैं उन सबका कंकरेंस चाहिए. पहला कंडीशन ये है कि सबका कंकरेंस चाहिए, और सबका कंकरेंस में अगर नहीं मिला है तो कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए. डिसीजन देयर अपॉन हैज़ बीन टेकन बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द कैबिनेट. सो या तो कैबिनेट कोई डिसीजन ले सकती है, और नहीं तो जितने भी इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशंस हैं वो सारे डिपार्टमेंट से कंसल्टेशन लेकर के ही तब उसको आगे अप्रूव करना है. एक्सप्लेनेशन है. Every case in which a decision, if taken in one department, is likely to affect the transaction of business allotted to another department, shall be deemed to be a case the subject of which concern more than one department. So जहाँ कहीं भी दो या दो से अधिक डिपार्टमेंट के ट्रांजेक्शन की ज़रूरत है उसके लिए ये मेंशन कर रहे हैं. सो ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन है इट इज़ रिलेटेड टू इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन. हम लोगों का भी होता है ना, लेबर मिनिस्ट्री की इशूज़ हैं और उसमें फाइनेंस इन्वॉल्व हैं तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाएगा.
कुछ होम क्लियरेंस चाहिए तो होम मिनिस्ट्री में जाएगा। कई तरह की चीज़ें होती हैं जो इंटर डिपार्टमेंटल रिक्वायरमेंट होती है, उसमें कंकरेंस की ज़रूरत पड़ती है और उसको लिया जाता है, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ शैल बी कंसल्टेड ऑन, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ किस चीज़ पे कंसल्ट की जाएगी? प्रोपोजल फॉर लेजिस्लेशन। चाहे किसी भी मिनिस्ट्री का लेजिस्लेशन हो, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का लेजिस्लेशन हो, कोल मिनिस्ट्री का लेजिस्लेशन हो, लेकिन अगर कोई प्रपोज कर रहे हैं लेजिस्लेशन तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ शैल बी कंसल्टेड। द मेकिंग ऑफ रूल्स और ऑर्डर ऑफ जनरल कैरेक्टर इन द एक्सरसाइज ऑफ स्टैट्यूटरी पावर कन्फर्ड ऑन द गवर्नमेंट, द प्रिपरेशन ऑफ इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी इंटर्ड इनटू द गवर्नमेंट। सो इनेक्टमेंट के लिए भी लॉ मिनिस्ट्री के पास जाना है, और कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है उसके प्रिपरेशन के लिए और उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या टेक्निकल इश्यूज हैं उनको वेटिंग के लिए भी लॉ मिनिस्ट्री के पास इनको भेजना है। Unless the case is fully covered by a decision or advice previously given by the Department of Personnel and Training, that the department shall be consulted on all matters involving. So DOPT involve है इसमें। DOPT कहाँ कहाँ पे कंसल्ट किया जाएगा? The determination of the methods of recruitment and condition of service of general allocation to government servant in civil employment. सो रिक्रूटमेंट और कंडीशन ऑफ सर्विस से रिलेटेड जितने इशू हैं उसके लिए DOPT को कंसल्ट करना है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑर्डर ऑफ द जनरल एप्लीकेशन रिलेटिंग टू सच रिक्रूटमेंट और कंडीशन, जहाँ कहीं भी ऐसे इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़े जो रिक्रूटमेंट रूल से रिलेटेड है उनके लिए भी DOPT को का कंसल्टेशन करना है। Unless the case is fully covered by the instructions issued or advice given by that ministry, the Minister of External Affairs that shall be consulted on all matters affecting the India's external relation. इंडिया के जितने भी एक्सटर्नल रिलेशन से रिलेटेड मैटर्स हैं, जितने भी एक्सटर्नल रिलेशन से रिलेटेड मैटर्स हैं उन सारे मैटर में एक्सटर्नल मिनिस्ट्री को कंसल्ट किया जाएगा। चाहे वो मैटर फूड एंड प्रोसेसिंग के से रिलेटेड हो, चाहे वो कोल से रिलेटेड हो, किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी मैटर हो, अगर उसमें एक्सटर्नल रिलेशन का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से कंसल्ट करना पड़ेगा। रिक्वेस्ट फॉर पेपर्स, द प्राइम मिनिस्टर मे कॉल फॉर पेपर्स फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट, the finance minister may call for papers from any department. So देखिए क्या है, रिक्वेस्ट फॉर पेपर्स में 3 सब रूल है। 3 सब रूल में एक तो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर कॉल फॉर पेपर्स फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट की फाइल प्राइम मिनिस्टर मंगा सकते हैं, ये उनके पास फुल पावर है। किसी भी डिपार्टमेंट की फाइल फाइनेंस मिनिस्ट्री मंगा सकती है अगर उसमें फाइनेंशियल कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो। और एनी मिनिस्टर मे आस्क टू सीक पेपर्स इन एनी अदर डिपार्टमेंट इफ दे आर रिलेटेड टू और रिक्वायर्ड फॉर कंसिडरेशन ऑफ एनी सच बिफोर हिम। सो इसमें क्या है, बाकी सब मिनिस्ट्री के भी मिनिस्टर जो हैं अगर उनको लगता है कि मुझे किसी दूसरे डिपार्टमेंट का पेपर चेक करना चाहिए, देखना चाहिए, तो वो भी ऐसा कर सकते हैं। कमिटीज ऑफ द कैबिनेट, there shall be a standing committee of the cabinet as set out in the first schedule to these rules with functions specified therein. There shall be a standing committee of the cabinet as set out in the first schedule. So क्या है, कैबिनेट की स्टैंडिंग कमेटी होगी। कमिटीज ऑन द कैबिनेट है तो कैबिनेट की स्टैंडिंग कमेटी होगी। स्टैंडिंग कमेटी का मतलब क्या होता है? खड़ी रहती होगी क्या? स्टैंडिंग मतलब खड़ा रहना। हाँ, तो कोई खड़ी रहने वाली कमेटी है क्या? यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी का मीनिंग है परमानेंट नेचर के। कुछ एडहॉक कमेटीज होती हैं और कुछ स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं। तो स्टैंडिंग कमेटी जैसे गवर्नमेंट फॉर्म होती है वो स्टैंडिंग कमेटी फॉर्म हो जाती है, और दूसरी जब गवर्नमेंट आएगी तो वो दूसरी स्टैंडिंग कमेटी फॉर्म होगी। लेकिन जब एडहॉक होगा, टाइम बेसिस पे कोई एक इशू देखने के लिए एक कमेटी बना दी गई, वो इशू सॉल्व हो गया 2 महीने 3 महीने 4 महीने में, वो कमेटी डिजॉल्व हो गई, वो स्टैंडिंग कमेटी नहीं होती है, वो एडहॉक कमेटी होती है। स्टैंडिंग कमेटी, ये कमेटी परमानेंट है,
तो वो कौन सी कमिटी है? कमिटी ऑन कैबिनेट. देयर शैल बी स्टैंडिंग कमिटी ऑन ऑफ द कैबिनेट एज सेट आउट इन द फर्स्ट शेड्यूल टू दीज रूल्स विद द फंक्शंस specified therein. The Prime Minister may from time to time amend the schedule by adding to or reducing the number of such committees or by modifying the functions assigned to them. So कैबिनेट के जो हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर है, और प्राइम मिनिस्टर के पास फुल पावर होता है कि वो जो कमेटी में जो रूल रेगुलेशन है उनको वो ज़रूरत के अनुसार मॉडिफाई कर सकें. Each standing committee shall consist of such ministers as the Prime Minister may from time to time specify. So जो स्टैंडिंग कमिटीज हैं, सिर्फ एक कमेटी नहीं होती है, बहुत से कमिटीज होती हैं. So जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें कितने मिनिस्टर होंगे, कौन कौन उसमें रहेंगे, दिस विल बी स्पेसिफाइड बाय प्राइम मिनिस्टर. Subject to the provisions of Rule 7, each standing committee shall have the power to consider and take decisions on matters referred to it by order of minister. एडहॉक कमिटीज़, पहले हमने स्टैंडिंग कमेटी की बात की, अब हम एडहॉक कमेटी की बात कर रहे हैं. एडहॉक कमिटीज़ ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स मे बी अपॉइंटेड बाय द कैबिनेट, the standing committees of the cabinet or by the prime minister for investigating and reporting to the cabinet on such matters as may be specified, and if so authorized by the cabinet, standing committee of the cabinet or the prime minister for taking decision on such matters. So स्टैंडिंग कमेटी के बाद से एडहॉक कमेटी भी होगी. और एडहॉक कमेटी फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड रिपोर्टिंग टू द कैबिनेट ऑन सच मैटर्स एज मे बी स्पेसिफाइड. टाइम टू टाइम जो कुछ भी जॉब दिया जाएगा उसके लिए एक एडहॉक कमेटी फॉर्म होगी, और वो कमेटी जो है अपना डिसीजन कैबिनेट को बताएगी, जो कैबिनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है उनको वो बताएगी. इन द एक्सटेंट देयर इज ए कॉमनलिटी बिटवीन द केसेज इन्यूमरेटेड इन द सेकेंड शेड्यूल एंड द केसेज सेट आउट इन द फर्स्ट शेड्यूल. इनमें कुछ समरूपता है, सिमिलरिटी है, उसी की बात कर रहे हैं. आइए अब देखते हैं सबमिशन ऑफ केसेस टू द कैबिनेट. कैबिनेट के पास कौन से केसेस दिए जाते हैं? ऑल केसेज स्पेसिफाइड इन सेकेंड शेड्यूल टू दीज रूल्स एक्सेप्ट केसेस कवर्ड बाय सब रूल 5 ऑफ रूल 6 शैल बी ब्रॉट बिफोर द कैबिनेट. सो कैबिनेट के पास सेकेंड शेड्यूल में जितने मैटर्स हैं वो सब कैबिनेट के पास रखे जाएंगे. तो ये कैबिनेट का ये पूरा लिस्ट है, और इसमें पॉइंट 2 में दिए हैं कि द प्राइम मिनिस्टर मे फ्रॉम टाइम टू टाइम अमेंड द सेकेंड शेड्यूल बाय. सो जिस सेकेंड शेड्यूल की बात हो रही है कि उस सेकेंड शेड्यूल के सारे केसेस कैबिनेट के पास सबमिट होंगे, उस सेकेंड शेड्यूल को अमेंड करने का पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है. हम क्या कर रहे हैं? हम कमिटीज़ की बात कर रहे हैं, हम किसी पार्लियामेंट प्रोसीडिंग की बात नहीं कर रहे हैं. ये कमिटीज़ की बात कर रहे हैं, और कमिटीज़ पे प्राइम मिनिस्टर का कंट्रोल है. सबमिशन ऑफ केसेस टू द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट. बहुत से ऐसे केसेस हैं जो कैबिनेट के पास होता है, सबमिट होता है, और बहुत से ऐसे केसेस जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के पास होता है. ऑल केसेस ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड इन थर्ड शेड्यूल. इसके लिए हमें थर्ड शेड्यूल देखना पड़ेगा. बिफोर द इशू, सेकेंड शेड्यूल किस चीज़ का था? कैबिनेट कमेटी का था. थर्ड शेड्यूल किस चीज़ का है? प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का है. बिफोर द इशू ऑफ ऑर्डर्स देयर ऑन बी सबमिटेड टू द प्राइम मिनिस्टर और टू द प्रेसिडेंट और टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट एज इंडिकेटेड इन द शेड्यूल. सबमिशन ऑफ पीरियोडिकल रिटर्न्स टू द कैबिनेट. हम लोग मंथली समरी भेजते हैं ना, मंथली स्टेटमेंट भेजते हैं, क्वार्टरली स्टेटमेंट भेजते हैं. ईच डिपार्टमेंट शैल सबमिट टू द कैबिनेट अ मंथली समरी ऑफ इट्स प्रिंसिपल एक्टिविटीज एंड सच अदर पीरियोडिकल रिटर्न्स एज द कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर में फ्रॉम टाइम टू टाइम रिक्वायर. सो ये क्या होता है? मंथली जो है मिनिस्ट्री का क्या क्या काम आपने किया है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट है. मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऑफ ईच मिनिस्ट्री है, और ये जितना है कैबिनेट के पास इसको मंथली दिया जाता है. कुछ मिनिस्टर, जो कुछ प्राइम मिनिस्टर डल होते हैं, वो एक पेपर जॉब समझ करके इसको बस पास कर देते हैं, और कुछ एक्टिव प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एक एक मंथली समरी को वो इंट्रो इंस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है जिससे इसमें इम्प्रूवमेंट लाया जा सके.
तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कैसा है उसके अनुसार रोल चेंज होते हैं। सबमिशन ऑफ सर्टेन पेपर्स टू द प्रेसिडेंट, द periodical reports and other papers specified in fourth schedule to these rules shall be submitted to the president. So third schedule prime minister, fourth schedule president. फोर्थ शेड्यूल में जो जो रिकॉर्ड्स मेंशन किए गए हैं वो सारे प्रेसिडेंट के पास सबमिट किए जाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज, इन ईच डिपार्टमेंट द सेक्रेटरी shall be the administrative head thereof and shall be responsible for the proper transaction of business and the careful observance of these rules in that department. Departure from rules, the prime minister may in any case or classes of cases permit or condone a departure from these rules टू द एक्सटेंट इट डीम्स नेसेसरी। प्राइम मिनिस्टर चाहें तो इस रूल्स से डेविएशन भी कर सकते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है ही इज़ द रियल हेड ऑफ द कंट्री। आइए कुछ स्टैंडिंग कमिटीज़ के फंक्शन देख लेते हैं। पहला है अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट टू टेक डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट स्पेसिफाइड इन एनेक्चर 1 टू द फर्स्ट शेड्यूल, टू टेक डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ impanelment specified in annexure to the first schedule, to decide all cases of disagreement relating to appointment between the department and ministry, to decide cases of extension of tenure। कहने का मतलब ये एक अपॉइंटमेंट कमिटी है और अपॉइंटमेंट से लेकर के टेन्योर तक का ये सारा काम जो होता है ये अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट देखती है। अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट के पास बहुत लंबे चौड़े काम है। यहाँ पर हमने फॉर इलस्ट्रेशन उसमें से कुछ हमने लिए हैं। उसके बाद से कैबिनेट कमिटी ऑन एकोमोडेशन है, अभी हमने देखा था कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट, और यहाँ पर क्या है कैबिनेट कमिटी ऑन एकोमोडेशन है, टू डिटरमाइन द गाइडलाइंस और रूल्स and terms and conditions to govern out of turn allotment of government accommodation. So government accommodation होते हैं, government accommodation जो होते हैं उनके allotment कैसे होंगे, उनको वैकेट कैसे किया जाएगा, किसको कौन अलॉट किया जाएगा, आउट ऑफ टर्न अलॉटमेंट का क्या प्रोसीजर होगा, ये सारी चीज़ें जो है इंक्लूडिंग रिवीजन ऑफ स्केल ऑफ एकोमोडेशन, रिवीजन ऑफ लाइसेंस फी, other matters like allotment of accommodation to various categories of central government servants from the central pool or special pool, इसके लिए कैबिनेट कमिटी ऑन एकोमोडेशन है। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स टू रिव्यू ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस इकोनॉमिक ट्रेंड्स, problems and prospects for evolving a consistent and integrated economic policy framework for the country, to direct and coordinate all activities in the activity field requiring policy decisions at the highest level including foreign investment, to deal with matters relating to the fixation of prices of agricultural products and price control in respect of industrial raw material and products, to deal with increase in the prices of essential commodities or bulk goods under the any of the formal or informal control. So ये जो है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है। उसके बाद से कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पार्लियामेंट के जितने भी मीटिंग होती हैं, to watch the progress of government business in parliament and to give such direction as may be necessary from time to time in order to secure smooth and efficient conduct of such business. So इसमें बहुत से इसमें दिए हैं, जैसे कि to review regulation undertaken by state legislature, to consider proposal to summon or prorogue the house of parliament. सो पार्लियामेंट के अफेयर्स के बारे में कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर होती है और वो डिसाइड करती है कि पार्लियामेंट का सेशन किस तरीके से ऐसे किया जाए कि वो स्मूथली कंडक्ट हो सके। इसके बाद से कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर है,
टू डील विद प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू सेंटर स्टेट रिलेशन, पॉलिटिकल मतलब सेंटर स्टेट रिलेशन, पॉलिटिकल मतलब अपने पार्टी के भीतर बात नहीं है, पॉलिटिकल मतलब सेंटर स्टेट रिलेशन, टू कंसिडर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इशूज दैट हैव टू बी जज्ड विद वाइडर प्रोस्पेक्टिव, and to deal with policy matters concerning foreign affairs that do not have external or internal security implication. Cabinet Committee on Security to deal with all defense related issues. ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, इसमें क्या है, डिफेंस रिलेटेड इशू ये बात करेंगे, डील करेंगे। टू डील विद इशूज रिलेटिंग टू लॉ एंड ऑर्डर एंड इंटरनल सिक्योरिटी, ध्यान दीजिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी पर इंटरनल सिक्योरिटी भी है। टू डील विद पॉलिसी मैटर कंसर्निंग फॉरेन अफेयर्स, क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि आप टू डील विद द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इशूज हैव इम्पेनिंग ऑन नेशनल सिक्योरिटी, ये इट इज़ डेल्ट बाय विच कमेटी, तो इसमें हमें बताना पड़ेगा इट इज़ डेल्ट बाय कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। तो ऐसे इनके ये सारे डिपार्टमेंट हैं, ये सारे एक एक करके इनके काम है। ये इलिस्ट्रेटिव इन नेचर है, इसका बहुत बड़ा लिस्ट है, वो बहुत बड़ा लिस्ट उस रूल बुक में मेंशन किया हुआ है। कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट है, अब इसमें गवर्नमेंट कुछ इन्वेस्टमेंट भी करती है, डिसइन्वेस्टमेंट भी करती है, दोनों प्रोसेस चलता है, और दोनों का जो डिसीजन है वो कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट लेती है। टू आइडेंटिफाई की प्रोजेक्ट्स required to be implemented on a time bound basis involving investment of ₹1000 crore or more or any other critical, जो इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ और उससे ज़्यादा है उसके बारे में कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेती है। टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स, टू रिव्यू द प्रोसीजर फॉलोड बाय मिनिस्ट्रीज, टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग ग्रांट रिफ्यूजल ऑफ अप्रूवल, टू रिक्वायर स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज टू डिस्चार्ज फंक्शन। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क हैं इनके, इनमें से कुछ हमने यहाँ पर इलिस्ट्रेशन के पर्पज से डाला है, ये सारे MCQ के क्वेश्चन बनते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन स्किल डेवलपमेंट, अभी स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चल रहा है ना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रहा है, तो ऐसे ऐसे स्किल डेवलपमेंट के बारे में ये लोग प्लानिंग करते हैं और देखते हैं। टू प्रोवाइड डायरेक्शन एंड कंसीडर ऑल पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, स्कीम्स एंड इनिशिएटिव फॉर स्किल डेवलपमेंट एम्ड एट इंक्रीजिंग द employability of the workforce for effectively meeting the emerging requirement of the rapidly growing economy and mapping the benefits of the demographic dividend। So कहने का मतलब टू कंसिडर एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी स्कीम है, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी स्कीम है, जितने भी मैटर्स हैं, वो सब कैबिनेट कमेटी ऑन स्किल डेवलपमेंट द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। उसके बाद से कुछ केसेज हैं, केसेज फॉर सबमिशन टू प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। आर्टिकल 59 के अनुसार प्रेसिडेंट्स इमोलूमेंट्स, प्रेसिडेंट महाराज के कितने खर्चे होंगे ये प्राइम मिनिस्टर के पास जाते हैं। ग्रांट ऑफ पार्डन, प्रिप्राइव, डिस्पाइट, सस्पेंशन, रिमिशन, ये सब प्रेसिडेंट महाराज का आर्टिकल 72 में इनका पावर है। आर्टिकल 72 याद करना है, ये पार्डन पावर है। अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन 75 है, प्रेसिडेंट है। अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया AG 76 है, ये आर्टिकल 76 याद रखना है। ये प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट दोनों के पास जाते हैं। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आर्टिकल 80 एंड 331, ये प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट दोनों के पास जाते हैं। समन एंड प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट 85 और 108 प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट दोनों के पास जाते हैं। सो ये कुछ केसेज हैं, ऐसे ऐसे अनगिनत केसेज है, लिस्ट बहुत लंबी है, हमने उसमें से ऊपर वाले कुछ लिस्ट लिए हैं इलिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। Cases which shall be brought before the cabinet. Cases involving legislation including the issue of ordinance, addresses and messages of the president to houses of parliament, proposal to summon or prorogue the houses of parliament, cases involving negotiation with foreign and commonwealth,
सो ये सब जो चीज़ें हैं ये कैबिनेट के सामने ये सब लाए जाते हैं। कल्चरल एग्रीमेंट, फॉरेन एग्रीमेंट, केसेज रिलेटिंग टू कमेंसमेंट एसोसिएशन ऑफ स्टेट ऑफ वार, ये सब जितने हैं ये शैल बी ब्रॉट बिफोर द कैबिनेट। कैबिनेट के पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो होती है वो इनके पास लाई जाती है। जैसे केसेज इन्वॉल्विंग लेजिस्लेशन इंक्लूडिंग द इशू ऑफ ऑर्डिनेंस। सो ये लेजिस्लेशन को पास कराना हो चाहे ऑर्डिनेंस को पास करना हो, ये दोनों चीज़ें कैबिनेट के पास जाती है। एड्रेस ऑफ द एंड मैसेज ऑफ द प्रेसिडेंट टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट कैबिनेट के पास जाता है। समन एंड प्रोपोज प्रोरोग ऑफ द हाउसेज होगा कैबिनेट के पास जाएगा। कैबिनेट से हो करके तब ये आगे बढ़ता है। Periodical reports and other papers which shall be submitted to the president for his information। महामहिम प्रेसिडेंट के पास ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो उनके इन्फॉर्मेशन के लिए सबमिट किए जाते हैं। एजेंडा एंड कनेक्टेड पेपर्स फॉर मीटिंग ऑफ द कैबिनेट एंड इट्स कमिटी एंड केसेस सर्कुलेटेड टू द मिनिस्टर्स फॉर रिकॉर्डिंग देयर ओपिनियन। Record of decisions reached on cases either circulated to ministers or decided at a meeting of the cabinet or any of its committee. Monthly summaries and such other periodical returns as are required to be submitted by department to the cabinet. Weekly intelligence summary, fortnightly reports about the internal political situation, annual returns reports submitted by officers committee, important telegram messages, copies of order issued by the department conveying। सो कहने का मतलब ये इलस्ट्रेटिव नेचर के हैं। ये सारी चीज़ें जो है प्रेसिडेंट महोदय के पास उनके इन्फॉर्मेशन के लिए टाइम टू टाइम सबमिट की जाती है थ्रू प्राइम मिनिस्टर। सो इस तरीके से हमने एलोकेशन वाला हमने पहले देख लिया था। ये ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस है। ट्रांजैक्शन ऑफ जितना भी एलोकेशन हुआ है, एलोकेशन ऑफ बिजनेस है, उसको ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस में वो सारे चीज़ें ट्रांजैक्ट की जाती है। उसमें लिस्ट दी हुए हैं और उस लिस्ट के अनुसार कुछ पावर प्रेसिडेंट महोदय के ने अपने पास रखे हैं, कुछ पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है, कुछ कैबिनेट कमेटी के पास है, कुछ मिनिस्ट्रीज़ के पास है और कुछ मिनिस्ट्री ने डिपार्टमेंट्स को दे रखी हैं। उन सबको क्लियर कट इसमें लिस्ट दिया हुआ है। कहीं भी कन्फ्यूजन की गुंजाइश नहीं है, सो दैट जो स्टैट्यूटरी वर्क हैं वो स्मूथली रन कर सकें। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, कमेंट करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।